Hello students, today we are starting our new session after injuries and routine forensic medicine. We are now starting demo classes. Demo classes means in these classes we will try to learn the application of theoretical knowledge into practical knowledge. So today I am going to discuss about injury report or medical legal reports. There are many medical legal reports. In reality, when you will practice your medicine or whatever subject you will choose, if you will work in any department, you have to do a medical legal work. I told you previously that whatever branch where you will go, you cannot run away from medical legal work. So in these demo classes, we will discuss about the various important medical legal reports like postmortem, injury report, alcohol examination report, sexual examination report, and many more. Those are day to day. Suppose that somebody want to made a DC, death certificate, dying declaration. There are various medical legal documents that you need to know, because when you will post it in a hospital, these are the one of the important work which you have to do. And people are facing a lot of challenges when they are writing these reports, because they have not paid enough attention while they were taught by the forensic medicine teachers. So it's my request to you, because if you know theoretical knowledge about forensic medicine, it is good for passing the examination. But if you but the important thing to apply this knowledge, how to report, how to examine a case and write a correct report. Because the problem is this: the forensic medicine, in each and every report what you will give, this is a written document, and you may go to court to encounter your findings. To they will ask you, they will give you someone, and you will go there and you will reply the questions raised by the prosecutor or advocate. So this is the big problem, because in future you may face those problems. Other subject, the problem is that your work is not so well documented, but you cannot run away from these documents. This is the dangerousness of medical legal reports. So unfortunately, our classes are still under pipeline, and college is not going to start your regular classes in your college. It is our compulsion to move on, because the demo classes should be in, it's a face-to-face discussion. It's tough to have a bypass from this, but it's a compulsion from this COVID time that we have to start our classes. So injury report I am going to teach you today. It's a discussion about how to write a report, correct report, because you can write a report, but if you don't know the real aspect of this, so it will be tough for you. So look at this report. This is usually it's a pro forma. We will give a written pro forma to you when you will be posted in your forensic medicine posting. But you may get these pro formas wherever you will get posted, you may not get it. It's by chance and depend on the policy of the college, but the findings should be written in this manner, so the possibility to exclude an important point, which is medico legal important. So this is one of the common pro forma given in the books, and you can go through these things, you can understand. तो इनमें होता क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरी जो आप रिपोर्ट्स लिखते हो और उसमें वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स में क्या अंतर होता है. मैंने आपसे बोला कि मेडिको लीगल रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड होती है, तो इसका एक नंबर होता है. इन जनरल अभी तक जो भी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनती आई हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट बन रही हैं ऑन पेपर इन एमपी. स्टिल they are on paper, they are not computerized. In future
ये अभी प्रोसेस में है कि सब डिजिटलाइज होना है। फिर आपको ऑटोमेटिक एक नंबर जनरेट होगा मेडिको लीगल एमएलसी रिपोर्ट। पर अभी तक एक रजिस्टर होता, आप किसी कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में विजिट करिए, वहाँ पर आप रजिस्टर देखेंगे, एक रजिस्टर है, उसके हम बोलेंगे एमएलसी रजिस्टर, और उसमें एक नंबर होगा। नंबर क्या हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, क्योंकि ये नंबर ही आपको फ्यूचर में आपको कभी कोई कॉल करेगा या इस नंबर से ही उसका सारा करस्पॉन्डेंस होगा। ये नंबर कैजुअल नंबर नहीं है, ये नंबर एक प्रॉपर नंबर होता है। तो पहला नंबर, पहला पॉइंट जो है सीरियल नंबर 1, और इसमें लिखा होगा -20, -17, -16। जैसे हम सपोज दैट एक लिखा हुआ है नंबर 26/17, तो इसका मतलब होता है ये एमएलसी है 26 नंबर की है और 2017 की है। तो कभी आप इस तरह से देखोगे रिपोर्ट को तो आपको दिखेगा कि ये मेडिको एमएलसी रिपोर्ट है जो 2017 में बनी है, 17 नंबर की है। 17 नंबर की एमएलसी जाके आप रजिस्टर पर खोलोगे तो आपको दिख जाएगी, है ना। मैं जस्ट एलेबोरेट कर दे रहा हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट्स को इजी वे में, जिससे आपको समझ सको कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर आपको हमने पढ़ाया है आइडेंटिफिकेशन। जब कोई पर्सन आता है तो उसकी फाइंडिंग से इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जिस पर्सन का आपने एग्जामिनेशन किया है, क्या ये वही पर्सन है जो आप, वही पर्सन जब कोर्ट में जाता है तो दूसरा चला गया तो क्या होगा। तो उसका आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डाटा जो उसका, कि उसका नाम क्या है, और उसके बाद फिर वो कहाँ रहता है, फिर उसके पिताजी का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पुलिस स्टेशन किसको बिलोंग करता है, ये सारे पॉइंट, एज, जेंडर, मेडिको लीगल रिपोर्ट नंबर, ये क्राइम रिपोर्ट नंबर, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये आप लिख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आप इसको लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जब भी मेडिको लीगल रिपोर्ट लिख रहे हो, ये ज़रूरी। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट में बिजी हैं, मेडिकल एमएलसी रिपोर्ट ड्रफ में नोट कर लेते हैं, फिर एक दिन बाद हमने फेयर की, बाय चांस रियली प्रोफेशनली और लीगली आपको तुरंत बनानी है, परंतु प्रैक्टिकली कई बार हो जाता, भीड़ लगी हुई है, पेशेंट ज़्यादा हैं और पेशेंट भी देखना है, एमएलसी बनानी है, आपका टाइम नहीं है, किसी से डिस्कस करना है, आप तुरंत बना के नहीं देना चाहते, आपने रफ में बना ली, फिर आप फेयर करके पुलिस वाले को कहते हो 10 मिनट बाद आ जाना, लिख दूंगा। ये देखना है कि जब आपने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया है, जब रिक्विजिशन आई है, उसी समय का टाइम और डेट डालनी है। डेट और टाइम दूसरे दिन का नहीं डालना है, वरना कल जब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस दिन किस टाइम पे आपने ये रिपोर्ट बनाई है। यदि आपने रिपोर्ट उसी टाइम पे, सही टाइम पे बनाई है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं तो आपसे बोलेंगे कि आपने क्या किया, फर्जी रिपोर्ट बनाई। कैसे बनाई है फर्जी रिपोर्ट, आपने दूसरे दिन रिपोर्ट बनाई है तो ये रिपोर्ट गलत है, आप मिले हुए हैं विक्टिम से या अक्यूज से, इसलिए आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, फॉरेंसिक मेडिसिन में हर चीज़ लीगली क्वेश्चन होती है और वो आपको सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करा सकती है। टाइम और डेट, मैं बोल रहा हूँ बार बार, टाइम और डेट आप इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ईमानदारी से और ध्यान से लिखिए। फिर ब्रॉट बॉय और उसके रिलेटिव के सिग्नेचर। यहाँ देखिए, आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसका कोई सेक्सुअल एग्जामिनेशन करना है, आपने कर लिया, अब कल जाके या कोई इंजरी एग्जामिनेशन कर लिया, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद केस लगता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद जब आप पहुंचते हो तब आपको कोई और बंदा दिखाई देता है, या 2 साल बाद आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पुलिस वाले आपसे क्या पूछेंगे, किसने आपको बताया था कि ये व्यक्ति सुरेश मीणा है, सपोज सुरेश मीणा है, तो आप उसको लिखोगे कि ये फलाना फलाना आरक्षक, राम प्रकाश यादव आरक्षक है, और ये हम इनके साथ आए हुए थे, इसका नंबर ये है। तो आपको उसका नंबर, बैच नंबर, जो आरक्षक आया हुआ था, टीआई आया हुआ थे या कोई भी पुलिस
पुलिस जो पर्सनल जो अकम्पनी कर रहे थे उस पर्सन विक्टिम को, वहाँ पर वो लिखना जरूरी है उसका नंबर के साथ, ब्रॉड बाय, कौन उसको लेके आया, फिर उनके फ्रेंड का नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर। ये हम प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रॉब्लम देंगे, आप उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप बना के लाइए और उसके मेल कीजिए एज ए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तब आप उसमें ये सब जानकारी भरिए, डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एडमिशन, नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट, नंबर एंड नेम ऑफ कांस्टेबल, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है। किस टाइम पे एडमिट हुए हैं, किस पुलिस थाने से आए हुए हैं, पुलिस में कब उसमें इंक्वायरी चालू हुई, नेम क्या है कांस्टेबल का, ये लिखना है। फिर जनरल कंडीशन, हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या बोल रहा है वो, कि ये बंदा था, ये 2 बजे रात को, दिन में 2 बजे हमें मिला है। तो उससे आप पूछोगे आज सुबह मेरी फलाने से लड़ाई हुई थी, उसने मुझे डंडा मारा, उसने मुझे ये मारा, उसके बाद मुझे बेहोशी आ गई, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। वॉट एवर हिस्ट्री दे आर गिविंग, यू विल नोट डाउन देवर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिखना है, ये एक ब्रीफ में 1-2 लाइन में हिस्ट्री लिखना है। जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन में आपको लिखना है कि अवेयर था, अनअवेयर था, कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, सेमी कॉन्शियस था, फिर रिस्पॉन्स कर रहा था कि नहीं कर रहा था, करना CNS का एग्जामिनेशन। फिर थोड़ा बहुत वाइटल्स का एग्जामिनेशन कर सकते हो कि ब्लड प्रेशर क्या था या अदर थिंग्स क्लिनिकली इम्पोर्टेंट। इतने डिटेल में नहीं लिखना है इंजरी रिपोर्ट में। जो दूसरी रिपोर्ट होती है अल्कोहल एग्जामिनेशन, वहाँ डिटेल में लिखना है। फिर उसके बाद कोई आर्टिकल आपको साथ आया, चाकू आया है, डंडा आया है, वो उसको यहाँ नोट करना है। फिर अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेंट। तो इसमें शुद्ध हिंदी में लिखवाते हैं। ये जो शुद्ध, ये लोकल लैंग्वेज में, हिंदी से मतलब नहीं है, जो भी लोकल लैंग्वेज वो समझ सकता है, जो व्यक्ति आपकी रिपोर्ट को लिखवाने के लिए आया है, जो व्यक्ति उसको समझ सकता है, उस भाषा में आप उससे लिखोगे। जैसे मैं अपना परीक्षण अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, इसका मत या अभिमत मेरे पक्ष या विपक्ष में जा सकता है, और उसके सिग्नेचर ले लो, नहीं सिग्नेचर कर सकता है तो अंगूठा लगवा लो। लेकिन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में ही लिखना है। आप किसी भी भाषा में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आपसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल है जिसको आप समझा रहे हो, उसको बात समझ में आ रही है, उसे लिखवा लेना है कि मुझे मेरा परीक्षण मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, इसका मत या अभिमत मेरे पक्ष या विपक्ष में जा सकता है, इसके लिए मैं सहमत हूँ, नीचे सिग्नेचर ले लो। ये होगी सहमति, कंसेंट। तो ये हो गया वो एरिया जहाँ तक इंजरी रिपोर्ट में सब चीज़ें कॉमन रहनी है ना। ये पॉइंट सभी में लिखने हैं। किसी भी तरह की रिपोर्ट हो उसमें कंसेंट लेना ही लेना है, पुलिस वाले की डिटेल लिखना ही लिखना है, पर्सनल की डिटेल लिखना हुआ है, एज लिखना हुआ है, सेक्स लिखना हुआ है, किसने बुलाया लिखना हुआ है, हिस्ट्री ब्रीफ में लिखना ही हुआ है। ठीक है। अब इंजरी रिपोर्ट का मतलब है चोट, शुद्ध हिंदी में। ठीक है। अब आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कितने तरह की चोट होती हैं, तो आपने ब्लंट इंजुरीज, शार्प इंजुरीज पढ़ी। ब्लंट इंजुरीज में आपने पढ़ा एब्रेजन, कंटूजन, लेसरेशन। शार्प इंजुरीज में आपने पढ़ा इंसिजन, कट इंजुरीज, चॉप इंजुरीज पढ़ी। तो अब आप एक कल्पना करो, आप ब्रेन में हमेशा जब भी इंजरी रिपोर्ट, अभी तो हाइपोथेटिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ब्रेन में एक आइडिया बनाना है कि पर्सन को किस हथियार से मारा गया है, किस तरह की चोटें इस पर लगी हुई हैं, क्या ये एब्रेजन है, क्या ये कंटूजन है, क्या ये लेसरेशन है, क्या ये कट इंजरी है, क्या ये स्टैब वुंड है। अब इन्हीं को कैसे डिस्क्राइब करना है, समझ रहे हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को लगा है ब्लंट इंजरी, है ना, किसी को क्या लगी, ब्लंट इंजरी, तो आप उसमें क्या लिखोगे, नंबर 1। मान लो ब्लंट इंजरी में क्या लगा हुआ, एब्रेजन, तो सबसे पहले लिखोगे। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट है नंबर देना, 1 2 3 4 ऐसे नंबर देना। तो नंबर 1
नंबर 1 पे मान, अच्छा इसमें सबसे अच्छा क्या रहता है डिस्क्राइब करना, हेड टू टो, हेड टू टो। तो सबसे ऊपर मान ली फेस पे कोई इंजरी है तो उसको लिख दो इंजरी नंबर 1, फिर उसके बाद चेस्ट पे इंजरी, इंजरी नंबर 2, इंजरी नंबर 3, इंजरी नंबर 4, इंजरी नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये नंबरिंग करना है इसकी। तो इंजरी नंबर 1 मान लीजिए कि एब्रेजन है, तो उसको लिखेंगे एब्रेजन ऑफ दिस साइज। सबसे पहले लिखोगे क्या, साइज, क्या लिखोगे, साइज। फिर नंबर 2 ऑप्शन क्या लिखोगे, साइट। तो साइज क्या हो गया, मान लीजिए 2 इंटू 3 सेंटी, अब्रेजन 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। साइट, साइट सपोज दैट कि मेरे राइट चीक पे है, ठीक है, तो आई विल राइट 2 इंटू 3 सेंटीमीटर एब्रेजन प्रेजेंट ओवर राइट चीक, या यदि डायमीटर लिखना है तो 2 सेंटीमीटर लेटरल टू एंगल ऑफ माउथ। तो नोज से लिखना है तो नोज से लिख लिया। मान लो हैंड पे लिख रहे हो आप ऐसे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 6 सेंटीमीटर बिलो द टिप ऑफ द राइट शोल्डर, या एल्बो से लिख रहे हो तो 6 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो। तो ऐसे एनाटॉमिकली उसको साइट करना है। साइज सबसे पहले ये बात है कि कौन सी टाइप की इंजरी है, एक टाइप की इंजरी एक क्रमांक पे आएगी, समझ रहे। तो एब्रेजन लिखा तो एब्रेजन प्रेजेंट ओवर राइट साइड ऑफ शोल्डर जस्ट 6 सेंटीमीटर बिलो द टिप ऑफ द शोल्डर एंड lateral to the arm it is 4 into 6 सेंटीमीटर इन साइज। फिर आएगा कलर, डार्क ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन इन कलर और रेडिश इन कलर। सबकी एजिंग पढ़ाई जा चुकी है आपकी, क्योंकि कितनी एज में क्या, तो आप उसको एज को बुक में पढ़ो कि सबसे पहले क्या आता है, रेडिश होता है, फिर डार्क ब्राउन, रेडिश डार्क रेड हो जाएगा, सबसे पहले ब्लड यूज़ हो रहा है रेड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 2 से 3 दिन में ब्राउनिश होना चालू होगा, फिर स्कैब बनेगा, फिर स्कैब गिर जाएगा, फिर नॉर्मल कलर हो जाएगा। इसी कंटूजन में विबग्योर जो पड़ा हुआ है आपने कि वायलेट होगा, फिर उसके बाद ब्लू होगा, फिर विबग्योर, फिर ग्रीनिश हो जाएगा, फिर येलोइश हो जाएगा, फिर नॉर्मल कलर में आ जाएगा। ये जो आपका पढ़ा हुआ है आपका, कंटूजन की एज क्या होती है, कंटूजन के कलर्स क्या होते हैं, या कट इंजरी के कलर्स क्या होते हैं, कट इंजरी लेसरेशंस के कलर क्या होते हैं, उसका ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, ये आपको इंजरीज़ में पढ़ाया जा चुका है, उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप चाहिए अपनी बुक खोलिए, जिसमें मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ कि इसमें आपको लिखना है एब्रेजन ऑफ दिस साइज प्रेजेंट ओवर दिस एरिया, साइट नंबर 1 व्हाट टाइप ऑफ इंजरी, नंबर 2 व्हाट साइज, नंबर 3 व्हाट साइट, नंबर 4 कलर और रिमार्क, एनी अदर रिमार्क, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट है कि सिंपल और ग्रीवियस, ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। नंबर 1 इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी, नंबर 2 साइज, नंबर 3 साइट, नंबर 4 इंजरी का डिस्क्रिप्शन कि कलर क्या है, कोई स्पेशल रिमार्क, नंबर 5 उसके बाद सिंपल और ग्रीवियस। ये पॉइंट आपको हर इंजरी में लिखने हैं, यही वो पॉइंट हैं जिससे रिपोर्ट बनती है। फिर आपको कहाँ मान लो आया आपका कट, तो आप लिखोगे स्टैब कट इंजरी प्रेजेंट ओवर द थाई 8 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल एरिया इन फ्रंट ऑफ द थाई, ये हो गई सिचुएशन। और साइट कट मार्जिन्स आर शार्पली कट डीप टू द मसल, एंड ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू जिसका आपका ड्यूरेशन आपका जो भी आपका लगता है, और सिंपल और ग्रीवियस। ओके, हो गए 5-6 पॉइंट। ऐसे ही आपकी जितनी भी इंजरी है, कंटूजन है, कंटूजन कितना बड़ा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, फिर वो साइट क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, सिंपल और ग्रीवियस। ये डेफिनेशंस आपको पढ़ाई चुकी हैं कि व्हाट इज इंजरी, इलीगल हार्म, वॉट एवर इलीगली हार्म प्रोड्यूस टू बॉडी माइंड एंड फॉर बॉडी माइंड, दैट इज का एंड प्रॉपर्टी, दैट इज इंजरी। फिर व्हाट इज हर्ट which produces pain disease or deformity, that is hurt. Then grievous hurt section 320 आपको पढ़ाया चुका है, emasculation, और जो 8 पॉइंट्स पढ़ाए चुके हैं वो आपको पता है ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। डेंजरस इंजरी विच इज़ डेंजरस इमीडिएट इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। तो ये जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनका ओपिनियन लिखते हो, ड्यूरेशन लिखते हो, जो इंजरी आपने देखी है और वो इंजरी किस टाइप की थी वो आपको ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। ये लिखने के बाद
नीचे एक पॉइंट लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यूजुअली लिखे जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो परमानेंट मार्क है वो प्रेफर किए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक नेवस और ब्लैक मोल। सपोज दैट मुझे मान लीजिए कि ब्लैक नेवस मेरी काफ पे है, राइट काफ, तो आई विल राइट ब्लैक नेवस प्रेजेंट और राइट काफ ऑफ 4 सेंटीमीटर बिलो दिस ना। द साइट को भी करना है और कितने हैं, कितना है, क्या है, नेवस है, मोल है, ये लिखना है। टैटू मार्क है, परमानेंट टैटू मार्क है, बर्थ मार्क है, ये इसमें लिखने हैं। टैटू नहीं लिखना है। टैटू इसलिए नहीं लिखना है, टैटू मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं हो सकता कि टैटू बदला जा सकता है, समझिए। बदले तो दूसरे भी जा सकते हैं, बट इट्स टफ टू रिमूव देम। टैटू को बदलना आसान होता है, इसलिए टैटू को लिखना अवॉइड करिए। 1 और 2 में ब्लैक मोल या नेवस ये लिख जाए, बर्थ मार्क मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यदि नहीं मिलते हैं तो टैटू भी लिख सकते हैं कि परमानेंट टैटू इज प्रेजेंट ओवर राइट फोर आर्म ऑफ दिस साइज। पर 1 से 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क बेटर होते हैं। और इनमें इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है कि चूँकि वही बात है कि यदि मान लो आप कोर्ट में जाते हो और बदल जाता है, विक्टिम बदल जाता है, तो आप क्या करोगे? आपको तो आपके ऊपर चार्जेस आएंगे ना कि आपने पर्सन को देखा ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओपिनियन के समय सिग्नेचर आपके लिखना चाहिए, किस तरह का वेपन यूज़ हुआ है। इसमें वेपन रिपोर्ट एक अलग से पढ़ाएंगे। जब वेपन आए तो वेपन की रिपोर्ट अलग ढंग से बनानी होती है, तो उसको मैं अलग से डिस्क्राइब करूँगा कि वेपन की रिपोर्ट कैसे बनानी है। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया कि इंजरी रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होते हैं। अब मैं आपको फॉर एन एक्सरसाइज आपको मैं देता हूँ, 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ। सारे बच्चों को 2 इंजरी रिपोर्ट बनानी है हाइपोथेटिकल। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं फिर से आपको गाइड कर सकता हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। अननेसेसरी मैं क्यों मेहनत करूँ। आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख दीजिए कि आपको इंजरी रिपोर्ट में क्या समझ नहीं आ रहा। जो भी समझ में नहीं आ रहा है मैं लाइव आपको फेसबुक से भी पढ़ा सकता हूँ, आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ। वॉट एवर योर विश आई विल शेयर यू। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंजरी रिपोर्ट। अब इसमें इसको आप बनाइए इसी फॉर्मेट में। और जो जो बस इंजरी का जो एरिया है वो मैं चाहूँगा कि आप टेबुलेटेड फॉर्म में बनाएं। 5 पॉइंट लिख दें। फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इंजरी, साइज़ क्या है, साइट क्या है, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बारे में कलर और रिमार्क या सिंपल एंड ग्रीवियस। ये पॉइंट्स आप लिखें। बाकी इसी फॉर्मेट में बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको बना के आप एक कागज़ पे बनाइए, प्लेन पेपर पे, हैंड रिटन, और उसमें साइन करके टाइम ड्यूरेशन डाल के आप मुझे व्हाट्सएप मेल कर दीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ या बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। किसी भी तरह की दिक्कत आने पे आप मुझे फिर से व्हाट्सएप पे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।